happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. A very good afternoon to all. This is Usha Yadav. Welcome honorable principal sir and respected teachers to teachers who honorable principal sir and respected teachers participation ceremony. Here is not asking, there is putting oneself in the hands of God. अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं वरिष्ठ शिक्षक साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और ज्ञान की देवी मां वीणा पाणिनी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस सत्कार समारोह का शुभारंभ करें। दीपमाला स्वागत में जल उठी, इत्र मलकर हवाएं जल उठी, कर रहे स्वागत हम सब आपका स्वागतम है। Athithi Devo Bhava. Guest is equivalent to God, and it being a code of conduct of our Indian culture, I would like to invite Teachers Choir to give hearty welcome through a welcome song.
flowers bloom. We welcome bells ring. We welcome flowers bloom. We welcome you all with fragrance and joy. Welcome, la la la, welcome. 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 Welcome bells are ringing, happiness and joy. Wish to welcome you here on special day today. Welcome bells are ringing, happiness and joy. Wish to welcome you here on special day today. Wish to welcome you here on special day today. Wish to welcome you here on special day today. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, it's a belief endorsed by we teachers always. I proudly announce the hard work of our teachers paid off when Kendriya Vidyalaya Khairagarh secured 100% result in 2019 in boards. केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षकों की प्रतिबद्धता एवं छात्रों के जीवन में उनके सर्वोच्च योगदान के लिए उन्हें सम्मान ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भी शिक्षक डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ नई ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का भी कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। विगत शैक्षणिक वर्ष में चुनौतियों के बीच सीबीएसई द्वारा कुशलतापूर्वक कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं संपन्न कराई गईं। जैसा कि उषा मैम ने अभी बताया कि गत वर्ष हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा है, जिसमें न केवल विद्यार्थियों की मेहनत रंगलाई, अपितु हमारे विद्यालय के शिक्षकों का भी बहुत योगदान रहा है। आज का ये कार्यक्रम ऐसे ही कुछ शिक्षक साथियों को समर्पित है जिन्हें उनके उत्कृष्ट पीआई के लिए सम्मानित किया जाना है। So it's time to felicitate the teachers and to present mementos. I look forward the presence of our honorable principal sir onto the stage. अर्जित किया उत्कृष्ट पीआई आपने क्योंकि विश्वास आपके पास था। ये पंक्तियां हैं हमारे विद्यालय के पीजीटी कॉमर्स श्री अविनाश पांडे सर के लिए, जिन्होंने अत्यंत लगन एवं परिश्रम से सत्र 2019-20 में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 64.2 एवं बिजनेस स्टडीज में 66.07% पीआई अर्जित किया है, जिसके लिए आपको दोनों विषयों के लिए स्वर्ण प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। मैं अविनाश सर से निवेदन करूंगी कि वे आएं और प्राचार्य महोदय से सम्मान ग्रहण करें। Congratulations to all of us. It's turn to call upon a personality who is noted for his simplicity, punctuality and dedication towards his work. Any cases? Yes, it's none other than Mr. Arvind Kumar, TGT Social Studies. His PI in 2019 in class 10 is 70.9, which is higher than regional PI. As a result, sir obtained gold certificate. Sir has joined KBS on 31st August 2019. Congratulations to you, sir. परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये खुले हुए उनके पर बोलते हैं,
वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं हमारे विद्यालय की पीजीटी इकोनॉमिक्स मिस ललिता मैम के लिए, जिनका सत्र 2019-20 में अर्थशास्त्र विषय में 66.96% पीआई रहा है। मैं ललिता मैम से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और आदरणीय प्राचार्य महोदय से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। Next, I cordially invite a melody queen of the school, Sanskrit scholar, Mrs. Sita Charasia. Her PI in class 10 in 2019 is 98.97, which is highest in Raipur region, and ma'am deserves applause truly because she achieved highest PI in Raipur region, and as a result she obtained gold certificate. Ma'am has joined Kendriya Vidyalaya Sangathan on 9 September 2019. Congratulations to you, ma'am. दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मोहिनी मुस्कान। दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मोहिनी मुस्कान, लाकर ऐसा उत्कृष्ट पीआई बना ली संगठन में अपनी पहचान। आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किसको आमंत्रित करना चाह रही हूँ। जी हाँ, हमारे विद्यालय की पीजीटी हिंदी श्रीमती मोहिनी साहू मैम, जिन्हें पूर्व में भी सत्र 2017-18 में कक्षा 10वीं के लिए गोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है, और आज सत्र 2019-20 के लिए 69.95 पीआई अर्जित करने के लिए उन्हें रजत प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आदरणीय मोहिनी मैम से निवेदन करूंगी कि वे आए और प्राचार्य महोदय से सम्मान ग्रहण करें। Once again, congratulations to all the achievers. You all made us proud, and we are looking forward to your continued contribution to the institution. And thank you, sir, for felicitating the teachers. An embodiment of optimism, enthusiasm, and dedication for his work, principal of the school. May I request him to come onto the stage to address us on this special event. अब मैं अविनाश पांडे सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। Good afternoon, respected principal sir, my dear colleagues, and all the students who have helped me to reach out here. So being in a teaching profession, I really feel proud of it. And sometimes when we are being get rewarded for our efforts, then its delight gets doubled. If you are in a teaching profession, it's a delighted job. You always enjoy, you always experience new things. But if you are getting some rewards, some kind of incentives,
which are not always measured in terms of money, they are more important in our life. So, memorizing my career in school, I started teaching right from 2011 after passing my BCom degree, and I worked as a part-time teacher, as a contractual teacher in a private organization for around 7 years. Then I joined Kendriya Vidyalaya on November 2017, and till then I have completed 3 years successfully in Kendriya Vidyalaya, Khairagarh. So it's really a feeling of proud and privilege to be the part of biggest organization and devoting ourselves for the cause of education and spreading awareness among the children. It's not only sometimes I feel that teaching our subject is only important thing in a school system. When we teach something more than that, when we teach in general most practical aspects of life or most practical things which are going on around us, then definitely we create a difference. So I feel a difference when I am imparting education, not only of syllabus of class 12th, but also sometimes going beyond it, covering syllabus of BCom also. And I never thought about getting some incentives or kind of increment. I always enjoy my teaching. So as a luck, I can say it's only a luck factor that I have got this kind of appreciation. And it's a proud privilege for us that we have got such kind of principal sir who has decorated and gave the idea of conducting such a beautiful program here. And not only this one, many other programs are also being conducted nowadays, which we are really feeling proud of being organization. It's like a multinational corporation culture or private organization culture that we are being incorporating in our school system now. So what I feel here, just I am going to share few things. My philosophy is that there is a famous Sanskrit slok, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मतलब हमारा अधिकार कर्म पे है, हम अपना काम कर सकते हैं, फल पे कभी नहीं. और ऐसा कहा गया है कि फल देना ईश्वर के हाथ में है. लेकिन इस लाइन में एक इम्प्रोवाइजेशन है, आप ध्यान दीजिएगा. कर्म पे भी हमारा अधिकार नहीं. इसके आगे एक संस्कृत का और भी श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा. कर्म भी ईश्वर ही तय करता है कि आप क्या करोगे. तो जब हम इस तरह के कर्म में आ जाते हैं जो कि टीचिंग है, जहां पे हम अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, रियली वहां पे बहुत ही अच्छा फील होता है. एक यही प्रोफेशन है, कई बार मैं अपने सीनियर कलीग से डिस्कस करता हूँ, एक यही प्रोफेशन है जहाँ पे हम मशीन नहीं बनते हैं, वी रिमेन अ ह्यूमन बीइंग. इन ऑल ऑफ द अदर प्रोफेशंस लाइक इन अ फैक्ट्री सिस्टम, आप 8 बजे जाइए, 4 बजे चले आइए, 3 बजे घर. यू आर जस्ट वर्किंग विद मशीन्स, यू डोंट फील एनी डिलाइट. You may have monetary incentive, monetary reward, you may have lakhs of salary there, but satisfaction doesn't you will have. Another thing is that you may always feel excited of getting new generation, younger generation, which is more dynamic, and they are always having newer experience, and they always impose challenge for us. They always bring new challenges in order to bring a mold their behavior, bring change in their attitude. We always try to struggle a lot. So what happens nowadays, I find the student, they don't have any careers or what we call perspective, or they don't have any goals. So when such kind of students appear in front of us, it's really become difficult to achieve anything bigger. But still we try to instill a habit or feeling of achieving something more. फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति जागृत हो, और उसी बड़ा करने की चाहत में हमारे लिए भी कुछ बड़ा हो जाता है, जिसमें इस तरह के सर्टिफिकेट्स या रीजन की एक देन है, केवीएस संगठन की एक देन है, जो इस तरह के सर्टिफिकेट और पुरस्कारों की घोषणा करता है. तो एक छोटे स्तर पर पुरस्कार है, इसके ऊपर भी बहुत सारे इंसेंटिव अवार्ड्स केंद्रीय विद्यालय देता है, और हमें वही मिलता है जितना हम डिजर्व करते हैं. तो मैं अपनी लाइफ में एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो भी रिवॉर्ड्स मिले हैं आज तक, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, और यदि कोई अवार्ड या रिवॉर्ड्स मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे ना मिले या मैं उस दिन एब्सेंट हो जाऊं. आई रियली डोंट फील दैट आई शुड गेट सम अप्रिसिएशन इन काइंड
साइकोलॉजिकली यदि हमने अपना नाम कहीं सुन लिया, दैट्स गुड इनफ। हमारा नाम भी आ गया और हम वहाँ नहीं भी जा पाए, एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं हमेशा रिजल्ट्स को देखते रहता हूँ जब भी पीआई आता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मेरे अंदर रहती है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। यदि 10वें नंबर पे हैं तो कम से कम 6वें में चले जाए, 5वें में चले जाए। तो यहाँ पे लकली प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा पीआई हाईएस्ट रहा, लेकिन वहाँ पे इस तरह का एप्रिसिएशन सिस्टम नहीं था। So I am really thankful to this organization, to this institution and all those dignitaries, higher authorities जो इस तरह की बात सोचते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। ये बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम है। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन एंड इट्स अ कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये स्कूल का अचीवमेंट है, ना कि मेरा कोई पर्सनल अचीवमेंट है। एंड एज अ पर्सनैलिटी, एज अ टीचर, आई एम हियर टू स्पीक for my subject. That's why I came here. Otherwise it's a reward for institution. We all should strive to get this excellence. हम सबको मेहनत करनी है, कोशिश करना है। चलो कोई बात नहीं, हम टॉप 25 में न रहे, टॉप 10 में रहे। तो इसी आशा के साथ आप सभी का दिन शुभ हो और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी ने ये अवसर प्रदान किया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। इसके बाद मैं अरविंद सर को बुलाना चाहूँगी, वे आए और इस सम्मान से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करें। Good afternoon, respected principal sir, dear teacher, and respect for all students जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब हम पहली बार केवी ज्वाइन किए थे तो हमको बी सेक्शन मिला था और बी सेक्शन की 1 से 1.5 माह तक हमारी क्लास नहीं चली थी। तो काफ़ी बच्चे डरे हुए थे कि सर हमारी 1.5 महीने से क्लास की हुई और हमारे एसएसटी में क्या होगा। हमको भी इससे पहले भी पढ़ाने का अनुभव नहीं था। मैं पहली बार एज ए टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ, तो यहीं पे मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन है यहीं पे है। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैंने अचानक 1 से 2 दिन बाद मैंने ग्रुप बना लिया था और बच्चों से कहा था कि आप डरिए मत, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस मिलता जाएगा मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा, तो आप लोग केवल उस पर फोकस करना। तो बच्चों ने वैसे ही किया और उसी का परिणाम है कि फर्स्ट टाइम ही हम लोग गोल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे। और थोड़ा इसलिए भी मेमोरेबल है क्योंकि एसएसटी में टोटल 64 बच्चे थे, तो ओवरऑल सभी के पास एसएसटी था। तो काफ़ी बड़ी एक चुनौती तो खैर नहीं कहेंगे, से अवसर कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए अवसर है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहा। बाकी संगठन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। जितनी अपॉर्चुनिटी केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है, सुविधाएं देता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और धीरे धीरे जैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। बाकी प्रिंसिपल सर के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया, सारे स्टाफ के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Arvind sir. Next, I would like to call upon Lalita Devi, Miss Lalita Devi, to share her views with us. Very good afternoon to respected principal sir, dear colleagues and dear students. आज का ये जो मौका है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेहनत के कारण ही हम आज यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने मेहनत की तो हमें ये सर्टिफिकेट या जो भी सामान आज दिया जा रहा है सिर्फ उन्हीं की वजह से दिया जा रहा है। हर टीचर मेहनत करता है अपनी तरफ से, लेकिन मेहनत जो है वो बच्चों ने की और उनकी मेहनत की वजह से आज हमें सम्मानित किया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें यहाँ पे सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ मतलब अपना आशीर्वाद उनको देना चाहूँगी कि वो जहाँ जिस क्षेत्र में भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, ऐसे ही मेहनत करते रहें। अपने माँ बाप, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हैं उसका नाम जो है वो ऊँचा करते रहें। ये मेरा फर्स्ट बैच था और फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है ये मुझे बच्चों के कारण मिला है।
इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है इस सब के लिए मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं मोहिनी मैम से निवेदन करूंगी कि वे आए और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के संबंध में अपने अनुभवों को साझा करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान सुधीर सहकर्मियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सादर अभिवादन। आज जो सम्मान मिला है इसकी अपेक्षा तो नहीं थी मुझे। मन में संशय था कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक विश्वास था जो बच्चों में जगाने की कोशिश की थी मैंने कि बच्चों, जो परीक्षा है, परीक्षा तो सबको डर लगता है परीक्षा से, लेकिन हिंदी जैसे विषय में बच्चे थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ इसको तो हम कर लेंगे आसानी से। तो बच्चों को मैंने सिर्फ यही कहा था कि बच्चों, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरी जो सीख है बच्चों ने उसको ग्रहण किया और जिसका नतीजा आज सामने है कि बच्चों की बदौलत से आज मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन और हमारे केंद्रीय विद्यालय खैरगढ़ परिवार की ओर से इस प्रकार से हमको सम्मानित किया कि हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम से शिक्षकों का उत्साहवर्धन तो होता ही है, साथ ही साथ विद्यार्थी भी उत्साहित होते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ना केवल हमारा बल्कि हमारे विद्यालय का साथ साथ शिक्षकों का भी इस प्रकार से नाम रोशन हो कि हम आगे चल कर के भी ऐसे शिक्षकों के ऊपर भी नाच कर सके। आप लोग इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा कि हम सभी यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षक हैं सभी इस काबिल हैं कि इस मंच पर आ सकते हैं। तो उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि यहाँ पर आज हम 5 हैं, सभी विषय शिक्षक यहाँ पर आए अगले साल और सभी को इस प्रकार से गोल्ड मेडल मिले। और इस चीज़ की मैं आशा करती हूँ कि ये होगा, ज़रूर होगा। मैं हमारे जितने भी सहकर्मी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया और हमको यहाँ पर इस काबिल समझा कि हम यहाँ पर आकर के बोल सकें। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया कि यहाँ पर हम आकर के 2 शब्द कह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे ज़्यादा मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर न सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि अपने योग्यता को भी प्रदर्शन करने में कहीं भी कोई चूक नहीं की। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mohini ma'am, for sharing your knowledgeable ideas with us. Next, I would like to invite Mrs. Sita Charasia to share her views with us. आदरणीय आचार्य महोदय एवं सभा में उपस्थित मेरे समस्त शिक्षक साथीजन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि अभी भी ललिता मैडम ने कहा, वैसे ही इसका श्रेय जो आज हमें ये सम्मान मिला है, इसका श्रेय मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को देती हूँ। मैं अपने प्यारे बच्चों को देना चाहूँगी। और संस्कृत यहाँ मैं जब ज्वाइन की, यहाँ पर मैंने पहली कक्षा ली तो कक्षा 10 के विद्यार्थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रहा था, पूरा बेसिक जो उनका था वही क्लियर नहीं था।
तो फिर धीरे धीरे परिश्रम किया गया और उन्हें बताया गया, तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे ये खुद भी यकीन नहीं था कि मेरे समस्त बच्चे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी 90 से ऊपर जाएंगे, 90 से ऊपर सभी विद्यार्थी। सिर्फ एक छात्र जिसका 86 था, सिर्फ एक छात्र था और बाकी सभी 90 से ऊपर आए। तो बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ इसके लिए कि संस्कृत में उन्होंने इतने अच्छे अंक अर्जित किए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को कि उन्होंने हमें इस तरीके से यहाँ इस मंच पे बुला करके इतना सम्मान दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस अब मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। First of all, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, congratulate all the respected teachers, certificate recipient for the extraordinary result, extraordinary achievement in the form of result of CBSE for class 10th and 12th for the session 2019 and 20. So it is a matter of great excitement for all of us as 5 teachers of our institution, of our school, have proved their talent, extraordinary talent in the form of result for class 10th and 12th. And it is considered all the teachers are excellent because they have been appointed by the headquarters and they have come across by many phases and written examination and interview part and some more formalities. In Hindi वो खरे उतर पाए हैं, तभी they have been appointed as a teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So in my term, all the teachers are excellent, but somehow, some cases, maybe the batch is so good or the particular batch is not so good. That is why sometimes we are unable to produce 100% result with quality. So it is a great opportunity to all of us. In the history of Kendriya Vidyalaya Khairagarh, I have seen in many occasions or many years the school was unable to produce this type of result because earlier in the ranking the Kendriya Vidyalaya Khairagarh was 24th or 25th out of 26th. 25वां 26वां रैंक में आते थे परीक्षा की इस दृष्टिकोण से। तो लास्ट ईयर व्हेन we were preparing the result analysis for last 3 to 5 years, and I have seen that you may see the graph how it is arose. So the efforts or the result or the reward dedicated to all the team members of Kendriya Vidyalaya Khairagarh, either students or teacher or supporting staff. So credit goes to all of us, and the teachers of the concerned subject is a leader. So it is considered सभी टीचर अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग हैं, और आउटस्टैंडिंग होने के लिए हमें कुछ सबूत देना पड़ता है।
and it is not a matter of ordinary things कि production of 100% result with quality in class 10th and 12th. So school is popularly known for this academic excellence. स्कूल में एडमिशन होता है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, डांस, नाच, गान, खेल कूद। आजकल एक भारत से भारत होता है, बहुत सारी रैलियाँ निकलती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ बातें होती है, सब कुछ एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन टीचर की जो पहचान होती है वो इसी रिजल्ट की बदौलत होती है कि साल भर उन्होंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, प्रॉपर गाइडेंस टीचर के द्वारा दिया गया और प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को टीचर के द्वारा मिला एंड क्रिएटेड सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसीलिए हमारे स्टाफ के जो भी सब स्टाफ होंगे, हमारे स्कूल के सब स्टाफ भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा एक वातावरण क्रिएट किया। हमारे को स्टाफ या हम बोलते हैं कलीग भी हो सकते हैं, हमारे टीचिंग कम्युनिटी का कोई भी मेंबर होगा, क्योंकि हम बच्चों को डिसिप्लिन में ला करके उनको इस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं। तो नॉर्मली ये कहा जाता है व्हेन वन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ रायपुर रीजन ऑलवेज दे वांटेड टू कैटेगराइज द टीचर्स XYZ। मान लो आपके स्कूल में 9 टीचर्स आर देयर, तो आप रैंक में डालो उसको, आप किसको नंबर 1 पर लाओगे, किसको 2 पर, सर या मैडम। तो एक बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है कि किसको मैं नंबर 1 पर लाऊंगी। मैडम सपोज पूजा मैडम है, मेरे कान खींचती है, पढ़ाती अच्छी है, लेकिन पनिशमेंट भी देती है, शी इज़ नॉट गुड इन ऑन माई आइज। सपोज XYZ है, मान लीजिए सर हैं, नहीं सर पढ़ाते तो अच्छे हैं लेकिन कभी कभी बहुत डांट देते हैं, ये मैडम पढ़ाती अच्छी है लेकिन, तो इसलिए बच्चों लोग को कैटेगराइज कर नहीं पाते हैं। हम कैटेगराइज नहीं पाते हैं। ऑल आर एक्सलेंट टीचर्स, ऑल आर वेरी गुड टीचर्स, ऑल आर आउटस्टैंडिंग टीचर्स। तो ये रिजल्ट एनालिसिस से ही पता चल पाता है कि एक्चुअल जो एफर्ट्स किया गया है, बच्चों में डाला गया है, वो ये आता है हमारे रिजल्ट के फॉर्म में। सो दैट इज़ वाई केंद्रीय विद्यालय संगठन इज रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हमारी जिम्मेदारी, जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम एक लेवल को टच करती है। सपोज वी हैव रिसीव्ड द गोल्डन सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट एंड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। तो हाउ टू मेंटेन दिस लेवल। तो वही चीज़ आती है कि बैच कभी अच्छा आ जाता है, कभी बैच अच्छा नहीं आता है। तो मेहनत तो हम सभी उतनी ही करते हैं। इट इज़ लकी चार्म भी बोल सकते हैं, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि कभी कभी हम मेहनत करने के बाद में भी हम इस लेवल तक रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए इन माई आइज़ और हम यही बोलते हैं बार बार कि टीचिंग कम्युनिटी इज़ द मोस्ट नोबल जो प्रोफेशन और कम्युनिटी, नोबल जॉब, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड द नोबल प्रोफेशन। जैसे आदरणीय अविनाश सर बतला रहे थे कि कहीं भी फैक्ट्री सिस्टम में जाएंगे तो आपको 8 घंटे फैक्ट्री चलते हैं तो खुलता है, पर वापस यू आर कमिंग बैक इन द सेम स्पिरिट। तो वो चीज़ यहाँ नहीं आता है। तो हम अपनी मेहनत से, अपनी कला से, अपने स्टाइल से, और हम स्टाइल भी कह सकते हैं कि नॉलेज तो टीचर के पास में है, तो आपकी नॉलेज को बच्चों में उकेरना या बच्चों तक ट्रांसफ़र करना और बच्चे भी उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज़ इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो जो टीचर इस कला में निपुण हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट के रूप में उनको नवाजा जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले साल में, कि इस विद्यालय के लिए बहुत से टीचर ऐसे आएंगे जो कि रिजल्ट के मामले में उत्कृष्ट हों, उत्कृष्टता का परिचय दें। और हमारे रायपुर रीजन में लगभग 27 KB ऐसे हैं जहाँ 10th एंड 12th हैं, और कुछ छोटे स्कूल हैं जहाँ 5th स्टैंडर्ड है, 7th 9th तक है। तो उस स्कूल में एक पोजीशन पर लाना, ये सचमुच ही एक टीम वर्क है, और बच्चों को तैयार करना, और इस तरह से CBSE की जो रिजल्ट प्रोसेस है उस पर खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आज के हमारे विशिष्ट अध्यापकगण को मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ।
और इसी उम्मीद के साथ कि दे विल मेंटेन द सेम स्पिरिट इन फ्यूचर ऑल्सो। और जहाँ तक जो टीचर्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम की जो बात की, so after receiving this certificate I was finding out the suitable occasion। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा या कोई ऐसे हमारे चीफ गेस्ट होंगे ताकि हम हमारे शिक्षकों का सम्मान कर सकेंगे। सो लकीली और अनलकीली बिकॉज ऑफ COVID-19 इट couldn't happen फॉर दिस सेशन, और हमें ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो पाया था। और ड्यूरिंग द स्कूल इंस्पेक्शन ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर सर ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि अभी तक आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। सो दैट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। आई वाज सर्चिंग द सूटेबल ओकेजन, और हम ही होंगे। और इसके पीछे आइडिया ये भी था कि बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखें, बच्चे भी महसूस करेंगे कि वी हैव excellent teachers, sufficient number, excellent teachers are sufficient in numbers। तो उनको भी पढ़ने की इच्छा आज अच्छी होगी, वो भी उत्साहित होंगे। बट किसी कारणवश ये नहीं हो पाया बच्चों के सामने, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। एंड वेरी सून वी विल हैव दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 19-20 के जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, हम उसको टीचर्स का विथ PI एंड सब्जेक्ट और फोटोग्राफ के साथ हम बहुत जल्दी हम अपने स्कूल में देख पाएंगे, ताकि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या जो नहीं हुए हैं वो भी याद कर पाएंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में ये टीचर्स को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये इट इज़ नथिंग बट अ मेमोरी। तो हमें पिछले कारणों से, कुछ हिस्ट्री से और कुछ घटनाओं से कुछ प्रेरणा मिलती है कि जब हम अच्छा कर सकते हैं तो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। बच्चा भी ये महसूस करेगा कि हमारा ये बैच, सीनियर बैच अच्छा रिजल्ट दिया तो हम भी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ और लास्ट अंत में यह कहना चाहूँगा कि बार बार मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम द टीचिंग कम्युनिटी, आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, क्योंकि टीचिंग जॉब, जो टीचिंग प्रोफेशन है, इतना आसान काम नहीं है। एट द सेम टाइम यू आर परफॉर्मिंग द टीचिंग एंड इवैल्यूएशन वर्क एंड कॉपी चेकिंग, एंड सम टाइम you are working with the other activities, यहाँ गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर प्रोग्राम, SB एक भारत से बहुत सारे हैं। तो टीचर का काम आजकल टीचिंग करना क्वार्टरली काम हो गया है। हम मेन बिजनेस में हम बच्चों का फीस वेरिफिकेशन करना है, बच्चों को इस तरह से कनेक्ट करना है, बच्चों को ये मैसेज देना है, बच्चों को वैसा कर देना है। तो बच्चों के साथ तालमेल करना और टीचर के लिए नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से तो पढ़ाई हो रही है। और ऑफकोर्स हम अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हो सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन जो बच्चों को तैयार करना, फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना और उनको खरा उतार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जो आज के हमारे टीचर्स ने दिखाया है। सो रायपुर रीजन में बहुत से केंद्रीय विद्यालय हैं और हर स्कूल में, हर क्लस्टर में एक कंपटीशन होता है। और जब तक हमें कंपटीशन की भावना या बच्चों में कॉम्पिटिशन्स की भावना नहीं होती है, तो बच्चे बड़े बड़े पोस्ट, चाहे मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे IAS, IPS या किसी भी क्षेत्र में खड़े नहीं उतर पाएंगे। तो टीचर में भी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, बच्चों में भी कंपटीशन की भावना होती है। जहाँ कंपटीशन की भावना नहीं है तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक पुअर हो जाता है। सो लेट अस टेक दिस स्पिरिट विथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चे स्कूल एग्जामिनेशन में पास तो वही होंगे, लेकिन वो जीवन के मार्ग में जहाँ उनको कंपटीशन एग्जामिनेशन देना चाहेंगे तो वहाँ भी बच्चे खरे उतर पाएंगे। तो हम ऐसे जनरेशन को तैयार कर पाने में सक्षम होंगे या हम कामयाब हो पाएंगे। तो आज का यह जो छोटा सा कार्यक्रम
हमारे इन्हीं गुरुजनों के सम्मान में आयोजित है। और साथ ही साथ आज सभी गुरुजनों को सादर मैं नमन करना चाहता हूँ। सो यू मस्ट हैव सीन द इंडियन आइडल प्रोग्राम कि डांस कंपटीशन होता है, वहाँ छोटे छोटे नए नए कलाकार आते हैं। तो शिल्पा शेट्टी बोलती है कि बड़े बड़े लोगों के साथ में खड़े होकर बात करना चाहिए या सच सच प्रणाम। तो आज के इस समारोह में आप सभी समस्त गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपकी उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you, sir, for your valuable words on this special event. Next, I would like to call upon Mrs. Amrita Chaudhary for her words of gratitude. Respected Principal Sir, achievers of the Vidyalaya, and all my dear friends, very good afternoon to all. We all start our day or any of our program by praying to God Almighty and by taking His blessings. So it's our prime duty to thank God always. We should thank God for everything. But during these difficult times of COVID, we all are present here, we are safe, we are enjoying, we are smiling, and we are sharing these beautiful moments with each other. That is the greatest blessing for us. Therefore, thank you, God. After God, I want to thank the head of the institution, head of our school, Kendriya Vidyalaya Khairagarh, our respected Principal Sir, for always encouraging us and giving his valuable advices to make every program not just special but also perfect. Thank you so much, sir. Now, I want to thank you. I want to thank these shining stars of our Vidyalaya who brought laurels to the Vidyalaya. They have put so much effort. They have given the encouragement to the children that they have produced 100% result, and the PI is also very high. Thank you, teachers. Thank you so much for your efforts. Vidyalaya has even higher expectations from you all in coming years. Now, I want to thank Shravani ma'am, Monica ma'am, Rakhi ma'am for presenting melodious song. Welcome song. Thank you all the lovely teachers who have given their time and contributed to make this ambience so beautiful and given their hard work to make this program successful by these arrangements. I thank you Garima ma'am and Usha ma'am for conducting this event so nicely. Thank you Reena ma'am for capturing this event. Thank you all Didis and Bhaiyas for always helping us in all the arrangements. And not at last, I want to thank everyone from bottom of my heart. Thank you so much. Stay safe and take care. Thank you.